Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today, we are here with our social science topic, that is Chapter 6, World After 1945, Part 3. Yes, we have discussed a lot in Part 1 and 2 that what world has faced after 1945. We have observed that after World War II, the end of World War II, we have observed lots of destructions. Countries have observed lot of destructions, whether it is a winning team or a losing team. But then after also there was a threat about Third World War, because the superpower countries have issues or differences between their opinions, like Soviet Union and America. Because of them, there was creation of Cold War, right? It was created, Cold War was observed, right? And because of Cold War, we can say there was 100% chance of Third World War. But somewhere in 1945, United Nations also established, and United Nations work for the peace of the world. And through its efforts, we can say that a Third World War won't happen. uh, Always United Nations had tried to maintain peace in the world. Their main motive is that, and also they try to develop all the countries of the world, and especially their member countries. We have seen the world United Nations charters, we have gone through it. And then if we say about India, if we talk about India, we can say that India is the country who always support peace, who always believes in disarmament, and that's why we haven't had participated in Second World War, right? We became neutral, and for that reason, country like India and many other countries, right, who are underdeveloped, or somewhere we can say who were the part of any superpowers, right, or who were the slavery countries, like they together came forward and started a non-aligned movement. And the idea of non-aligned movement was being given by our country India, but by our Jawaharlal Nehru. So we have learned in last part about the non-aligned movement. कि non-aligned movement यानी हम किसी भी सुपर पावर कंट्रीज को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे. So this was up till we have seen. Today we'll continue with this chapter. So let's begin. So now comes partition and unification of Germany. After seeing the topic of non-aligned movement, then after it comes partition and unification of Germany. We have seen that in Second World War, Germany have been had been divided into numbers. Right, many superpower countries have made their colonies over there, and it was divided. So we can say it was partitioned, and then after उसका फिर से unifications भी हुआ. Let's read out. Germany was the main cause behind both the world wars. Germany, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ऑफ जर्मनी ये दोनों ही वॉर्स हुए. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी की वजह से हुआ, एंड उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद अपना रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ही, जर्मनी ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी क्रिएट किया समवेयर. सो मेन कॉज बिहाइंड बोथ द वॉर्स वर जर्मनी. It faced a humiliating defeat in World War II. और सेम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ, सेम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ. जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हारा और बुरी तरीके से हारा. ऑल इट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक कोलैप्स्ड कंप्लीटली. उनका जितना भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था और यहाँ तक कि इकोनॉमी, आई हैव ऑलवेज एक्सप्लेन्ड दैट इन वर्ल्ड वॉर्स फाइनेंशियली पूरी तरीके से कंट्री टूट जाती है, डेवलपमेंट पूरी तरीके से अटक जाता है. वी कैन से वर्ल्ड वॉर्स में हम वापस 10 साल पीछे आ जाता है. जितना हमने डेवलप्ड किया है, जो कुछ भी किया है, कंट्रीज ऑब्जर्व सच अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट हम फिर से 10 years और 20 years पीछे आ जाते हैं. तो हर एक कंट्रीज के साथ ये होता है, भले वो जीती है या हारी है. ऑल ऑब्जर्व सच टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस. सो जर्मनी ऑल्सो हैपेंड. जर्मनी के साथ भी यही सब हुआ कि उसकी इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई. There was not a single large party left in the whole of Germany that could rule the nation. उसके बाद एक ऐसी कोई पार्टी बची नहीं थी जो जर्मनी को फिर से रूल कर सके. In addition to that,
there was fear that Germany would pose threat to the world once again. और इसी के चक्कर में, क्योंकि कोई रूलिंग पार्टी नहीं है, कोई देश को संभालने वाला नहीं है, कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो समवेयर ऐसा लग रहा था कि भाई जर्मनी फिर से कोई थ्रेट क्रिएट ना कर दे और फिर से कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर या ऐसा कुछ भी, मतलब टेररिज्म या ऐसा कुछ क्रिएट ना हो जाए। इफ इट इमर्ज एज अ मिलिट्री पावर वंस अगेन, और ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मिलिट्री पावर जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिकॉज ऑफ अडोल्फ हिटलर एक पावर आया, वैसा ही कोई दूसरा पावर यहाँ आके उसे ह्यूमिलिएट ना करे और मिलिट्री पावर्स हो जाता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगेन होने के चांस हो जाएंगे। Therefore, the defeated Germany was divided into 4 administrative segments. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो गलती हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की, राइट, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वही गलती हम फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनके डिफिट होने के बाद करें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जर्मनी को 4 भाग में डिवाइड किया गया, राइट, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स में जर्मनी को डिवाइड किया। द सोवियत रेड आर्मी इज द लेटर फेज ऑफ द वॉर। उसके बाद आया सोवियत रेड आर्मी, ये इसका लेटर फेज था, यानी हम कह सकते हैं वॉर का बाद का जो फेज निकला वो ये था। इसने क्या किया, सोवियत रेड आर्मी ने हैड कैप्चर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, जर्मनी के ईस्टर्न पार्ट को कैप्चर किया सोवियत रेड आर्मी ने। Therefore, it was accepted that Eastern Germany would remain in their control. तो ये बात लोगों ने भी, मतलब सुपर पावर कंट्रीज ने भी एक्सेप्ट की कि ठीक है, सोवियत रेड आर्मी ने पहले वो कैप्चर किया था ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, तो वो पार्ट उन्हें ही दे देते हैं। तो सोवियत रेड आर्मी के कंट्रोल में रहेगा ईस्टर्न जर्मनी, whereas it was decided that America would control साउथ वेस्ट साइड ऑफ जर्मनी, और ये डिसीजन लिया गया कि अमेरिका साउथ वेस्टर्न जर्मनी को कंट्रोल करेगा। फ्रांस को कौन सा एरिया दिया, फ्रांस वुड कंट्रोल इट्स एरिया नियर फ्रांस, फ्रांस अपने एरियाज, मतलब फ्रांस के नियरेस्ट जितने भी एरियाज हैं उसे कंट्रोल करेगा। वाइल ब्रिटेन वुड कंट्रोल एरियाज ऑफ जर्मनी बॉर्डरिंग बेल्जियम एंड हॉलैंड, और ब्रिटेन को कंट्रोल दिया कि जर्मनी और मतलब उनके कंट्रीज के साथ जो भी उनके बॉर्डरिंग में आता है उसे वो कंट्रोल करेंगे, जो जर्मनी के बॉर्डरिंग में आ रहा था बेल्जियम और हॉलैंड, यानी ब्रिटेन के बेल्जियम और हॉलैंड की बॉर्डरिंग के आसपास जहां जहां जर्मनी था वो एरियाज ब्रिटेन को दिया गया। Thus, after the war, two independent German states came into existence, namely West Germany and East Germany. तो हम ये कह सकते हैं कि वॉर के बाद जर्मनी एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक हुआ ईस्टर्न जर्मनी, जहां कौन थे, ईस्टर्न जर्मनी में सोवियत यूनियन था और वेस्टर्न जर्मनी में अमेरिका था। और इस हिसाब से उनकी पार्टीज को ध्यान में रखते हुए या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इट इज सेड दैट वेस्टर्न जर्मनी जो अमेरिका के अंडर में था, नेम्ड एज डेमोक्रेटिक टाइप, वहां गवर्नमेंट सिस्टम आई डेमोक्रेटिक टाइप की, और ईस्टर्न जर्मनी जो सोवियत यूनियन के अंडर में था वहां आई कम्युनिस्ट। ठीक है, एज जर्मनीज 3 वेस्टर्न सेगमेंट्स वर यूनाइटेड, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स ऑफ बर्लिन ऑल्सो यूनाइटेड, क्योंकि जर्मनी के 3 वेस्टर्न सेगमेंट्स ऐसे थे जो एक साथ थे, यूनाइटेड थे, तो उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट भी बर्लिन का यूनाइटेड रखा गया। इन अ रिएक्शन टू दिस, अब इसकी रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, सोवियत यूनियन इन अप्रैल 1948 डिक्लेयर्ड बर्लिन ब्लॉकहेड, क्योंकि 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स बर्लिन का भी यूनाइटेड रखा गया और वहां सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन ने वहां पे अप्रैल 1948 में बर्लिन ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया, यानी बर्लिन से कोई बाहर नहीं जा सकता, राइट, उसकी बॉर्डर से कोई बाहर नहीं जा सकता। वी कैन से कि ये ईस्टर्न साइड था, यानी वेस्टर्न के लोग बर्लिन में नहीं आ सकते और बर्लिन के लोग बाहर नहीं जा सकते। दिस रिजल्ट्स इन ट्रेमेंडस टेंशन, इसकी वजह से एक ग्रेट टेंशन क्रिएट हुआ सोवियत यूनियन के बीच में और वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका के बीच में। फिर से ऐसा लगा कि ये अब इनकी वजह से कहीं फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट ना हो जाए, जो ऑलरेडी दोनों के बीच के डिफरेंसेस चल ही रहे थे अमेरिका और सोवियत यूनियन के। Later on, a high and 42-kilometer long wall separating western and eastern Berlin was constructed. अब पूरे बर्लिन में आधा हिस्सा सोवियत यूनियन के था अंडर में, आधा इसका हिस्सा वेस्टर्न में था,
यानी अमेरिकन के बीच में था। तो एक 42 किलोमीटर की लंबी एक और ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन को अलग करने में। The communist government tried to prevent thousands of East German citizens from jumping and entering into the free atmosphere of Western Germany. अब ये क्या हुआ कि जो ईस्टर्न जर्मनी ने, यानी ईस्टर्न जर्मनी में कौन रूल कर रहा था? सोवियत यूनियन। उसने बर्लिन ब्लॉकेड डिक्लेयर किया, राइट। यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि ईस्ट जर्मनी के जितने भी सिटीजन है वो वेस्ट जर्मनी में ना जाए, राइट। बट वेस्टर्न जर्मनी में ये छूट थी कि कोई भी बंदा यानी कोई भी ईस्टर्न जर्मनी का, राइट, वो इस फ्री एटमॉस्फेयर में आ जा सकता है। ओके, सो मैनी पीपल लॉस्ट देयर लीव्स इन डूइंग सो, और इसकी वजह से बहुत सारों ने अपने घर छोड़े, क्योंकि ईस्ट जर्मनी से अगर वेस्ट जर्मनी में जा रहे और वापस वो एंटर नहीं हो सकते ईस्टर्न में। सो बहुत सारों के घर भी टूटे और बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शंस हुआ, बहुत सारों ने अपने घर खोए। आफ्टर अबाउट 4 to 4.5 decades, कितने decades? 4 to 4.5 decades, Western Germany made an astonishing development, right? 4 से 4.5 decades, यानी decades, 1 decade equals to 10 years, so 40 years, or we can say around 45 years में वेस्टर्न जर्मनी ने एक बहुत एस्टोनाइशिंग, एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट किया। एक्सपर्ट्स कंसिडर दिस एज अ जर्मन मिरेकल, और आज के हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये कहीं जर्मन मिरेकल ही हुआ है कि इस तरीके से वेस्टर्न जर्मनी ने इतना डेवलप किया। और वेस्टर्न जर्मनी को रूल कौन कर रहा था, यानी उसका कंट्रोल किसके अंडर पे था? अमेरिकन के अंडर में। There was no remarkable change in the economic condition of East Germany, but East Germany में कोई फेरफार नहीं आया, कोई economic conditions में remarkable change नहीं आया। The East Germany communist government crushed all hopes of its people for political freedom and rapid economic development, और इसका कारण ये था कि ईस्टर्न जर्मनी की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, यानी सोवियत गवर्नमेंट जो थी, जो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म में बिलीव करती है, उसने लोगों के सारे होप्स को क्रश कर दिया, अपनी पॉलिटिकल, उन लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम छीन के, राइट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कुछ खास नहीं हुआ। Till 1990, many important and far-fetching changes took place in international politics. और 1990 तक बहुत सारे important और बहुत सारे far-fetching changes, यानी बहुत सारे ऐसे changes आए international politics में, जिसका असर कहीं ईस्टर्न जर्मनी पर भी पड़ा। Owing to many reasons, the Cold War among superpowers also ended. ये हमने देखा कि बहुत सारे reasons की वजह से जो Cold War थे superpowers के बीच में, वो तो खत्म हुआ। These years witnessed cracks in otherwise impregnable Soviet Union. Ultimately, Soviet Union disintegrated. और कहीं ना कहीं ये year ने ये भी witness किया, ये भी एक proof बना, ये भी एक सबूत हुआ कि भाई सोवियत यूनियन में भी बहुत क्रैक्स आए, राइट। और सोवियत यूनियन की अपनी वी कैन से यूनिफिकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन भी यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी ये भी अलग हो गया। As a consequence of it, on October 3rd, 1990, both the Germany united. और इसके consequence की वजह से, क्योंकि सोवियत यूनियन अपना पावर वहाँ नहीं जमा पाया, वो खुद ही यूनाइटेड नहीं रह पाया, उसकी वजह से 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी फिर से मिल गए। जो पार्टीशन हुए थे इनटू ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी, वो फिर से एक साथ आए। पीपल ब्रोक डाउन द जर्मन वॉल, वो जो बड़ी सी वॉल बनाई गई थी ईस्टर्न बर्लिन और वेस्टर्न बर्लिन को अलग करते हुए, वो पूरी वॉल तोड़ दी गई। और ये विच वॉज अ सिंबल, यानी वो एक सिंबल था जर्मन डिविजन का, उस सिंबल को इन लोगों ने तोड़ दिया, उस वॉल को तोड़ दिया। पीपल कंसिडर डिमोलिशन of the burning wall as the end of the Cold War era and celebrated the occasion wholeheartedly. तो लोगों ने ये कंसिडर किया कि बर्लिन वॉल का टूटना यानी कोल्ड वॉर का एंड होना, एक जो कोल्ड वॉर का एरा चला था उसका एंड हुआ, और लोगों ने सेलिब्रेट किया इस ओकेजन को। Today, unified Germany has turned out to be the strongest economic power in Europe. और आज ये हाल है, जो हमारा यूनिफाइड जर्मनी है, राइट, वो यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर उसके पास है, इतना डेवलप्ड हो चुका है जर्मनी।
After 1990, they have made a tremendous effort to be the strongest economic nation in the last decade. 1990 के बाद इन्होंने इतने tremendous effort, इतने efforts लगाए हैं कि वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक नेशंस में आ गए हैं कुछ लास्ट डिकेड में, यानी कुछ लास्ट 10 साल में इतना डेवलपमेंट उन्होंने किया है. Today, it has become one of the most important and leading nations in the European Union. और आज हम देखें तो जर्मनी एक बहुत important और एक बहुत leading nation है यूरोपियन यूनियंस में, सबसे आगे है वो. अब आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. ये तो हमने देख लिया कि जर्मनी के जो ईस्टर्न पार्ट में वो डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि सोवियत यूनियन ही डिसइंटीग्रेट हुआ. तो ये डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, लेट्स सी अबाउट इट. कि रशिया और सोवियत यूनियन ये कैसे अलग निकले जो कभी एक साथ थे, मतलब वो कैसे रशिया एक नाम कैसे बाहर आया. During the last decade of the 20th century, Soviet Union's Prime Minister Mikhail Gorbachev's liberal policy led to the disintegration of Soviet Union, Russia. कुछ लास्ट 10 सालों में, अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, हम 20th सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी के लास्ट 10 सालों में सोवियत यूनियन के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिखाइल गॉर्बेचोव, उनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत लिबरल पॉलिसी थी, बहुत फ्रीडम देने वाली ऐसी पॉलिसी थी, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का कंट्रोल उसके हाथ में से निकला और ये डिसइंटीग्रेट हुआ. Peaceful disintegration of Soviet Union is considered as a potch making in international politics. So ऐसा कहा जाए कि भाई यहाँ का डिसइंटीग्रेशन एकदम पीसफुल हो तो उसे एक नाम दिया गया अपॉच मेकिंग. अपॉच मेकिंग कहा जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को. Now what is this approach making? Approach making का मतलब होता है an event or a time that begins a new period or development. So इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन को ऐसा कहा गया कि ये एक नया एरा लाएगा, एक नया डेवलपमेंट, एक नई सुबह लाएगी. Mikhail Gorbachev became the prime minister from a socialistic side on 11th March 1985. तो मिखाइल गॉर्बेचोव प्राइम मिनिस्टर बने सोशलिस्टिक साइड के हिसाब से और वो बने 11th मार्च 1985 को. He had a liberal attitude, उनका एटीट्यूड बहुत लिबरल था. रशिया had progressed tremendously in the field of science and technology. और हुआ क्या कि रशिया बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था और खास करके फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रशिया बहुत आगे निकला. दे ऑल्सो हैड एक्वायर्ड कैपेबिलिटी टू कम्पीट विद सुपर पावर्स लाइक अमेरिका. और रशिया इतना आगे निकला कि उसके पास अब ये कैपेबिलिटी थी कि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी कम्पीट कर सकता है. You can see here the map and this is the map of Russia कि रशिया का कैसे या सोवियत यूनियन के कैसे पार्टीशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बारे में यहाँ दिखाया है. Gorbachev adopted two policies, glasnost and perestroika. Gorbachev ने दो पॉलिसीज को अडॉप्ट की, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका. अब ये क्या है? In this way, Gorbachev introduced economic and political reforms in the place of single-handed communist rule. ये दोनों पॉलिसीज को लाते हुए गोर्बाचेव ने ये इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ये किसी भी एक सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट के रूल में ही जाना चाहिए, राइट, जिससे उसे लगा कि शायद कोई ना कोई डेवलपमेंट होगा. लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका क्या है. ये पेरेस्ट्रोइका एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, राइट, जो इसलिए लाया गया था कि रिफॉर्मेशन हो कम्युनिस्ट पार्टी में, और वो भी कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत यूनियन की. ड्यूरिंग द 1980s में ये किया गया था एंड वाइडली एसोसिएटेड द सोवियत यूनियन गोर्बाचेव एंड हिज ग्लासनोस्ट. ग्लासनोस्ट एक का मतलब होता है ओपननेस, यानी एक लिबर्टी, जैसा हमने देखा कि बहुत लिबरल थे, वो ओपननेस वाली एक पॉलिसी रिफॉर्म इन्होंने शुरू की. पेरेस्ट्रोइका का अगर मैं शॉर्ट मीनिंग बताऊं तो आई कैन से द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंटल रिफॉर्म, ओके, जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी में मिड 1980s को लाई गई थी. सो द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, द सोवियत ब्यूरोक्रेसी एंड द रेड आर्मी स्टार्टेड वीकनिंग. अब ये जो उनका डिसीजन था वो शायद रॉन्ग प्रूव्ड हुआ, जिसकी वजह से पहले जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था कम्युनिस्ट पार्टी का, या हम कह सकते हैं सोवियत ब्यूरोक्रेसी का या रेड आर्मी का, ये धीरे धीरे वीक होने लगा.
In 1990, the process of the disintegration of Soviet Union began. अब इसके बाद 1990 में ये हाल हो गया, इतना वीक हो गया कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने लगा, उसकी शुरुआत हो गई. Towards the end, out of 15 states, 14 states became independent and the disintegration of Soviet Union came to an end December 1991. अब 1990s के एंड होते होते 15 जो स्टेट्स थे उसमें से 14 स्टेट्स ऐसे हो गए कि सोवियत यूनियन के हाथ के बाहर से निकल गए, यानी उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट जाहिर कर दिया. एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन केम टू एन एंड, और यहीं से उनका डिसइंटीग्रेशन जो था वो कंप्लीटली अंत आ गया दिसंबर 1991 में. नाउ कम्स इंडियाज कंट्रीब्यूशन एट द इंटरनेशनल लेवल. अब इंटरनेशनल लेवल में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, यानी इंडियन के या इंडिया के क्या रिलेशन थे इंटरनेशनल यानी दूसरी कंट्रीज के साथ, राइट. और उनके वी कैन से डिफिकल्टीज में या ऐसे कुछ भी में हमने कैसा अपना योगदान दिया. लेट्स सी. India has contributed significantly at the international level during its freedom struggle and after its independence. India ने हमेशा अपना एक contribution significantly दिया international level पे, वो चाहे freedom struggle के वक्त की बात हो या वो चाहे independence के बाद की बात हो. India has always opposed imperialism. इंडिया ने कभी भी इम्पीरियलिज्म का साथ नहीं दिया. इम्पीरियलिज्म यानी एक ऐसे कंट्रीज जो बिलीव करते हैं दूसरे कंट्रीज को दबाना, दूसरे कंट्रीज पर रूल करना, राइट. उसे इम्पीरियलिस्टिक, जैसे ब्रिटिश का नेचर क्या था कि हम ही बेस्ट और हम सब पे रूल करेंगे, उसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म, अ टाइप ऑफ नेचर. ठीक है. कॉलोनियलिज्म यानी एक कंट्री को हराओ और उस पर अपनी कॉलोनीज बनाओ, उस पर रूल करो. एविल्स लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल्स डिस्क्रिमिनेट करना. ओके. जैसे अफ्रीका में हुआ था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जात पात पे, उस कलर्स पे, ब्लैक एंड वाइट पे डिस्क्रिमिनेशन, या ऐसी किसी भी बात में इंडिया नहीं मानता था. इट हैज सपोर्टेड मूवमेंट्स अपोजिंग सच एविल्स, और इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है जब भी ऐसे एविल्स के खिलाफ कोई मूवमेंट्स हुए हैं. इंडिया हैज ऑलवेज रिमेन्ड एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन ऑल इट्स एक्टिविटीज. इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशंस को लेकर या कोई भी चीज को लेकर एक्टिव पार्टिसिपेट किया है, और उसकी हर एक एक्टिविटीज में जो पीसफुल की तरफ जाती है, जो कंट्रीज के या ग्लोब के पीस के बारे में सोचती है, उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन होता ही है. India has played an important role by sending its military to support the United Nations efforts in maintaining international peace and security. यहाँ तक कि इंडिया ने जब भी जरूरत पड़ी है यूनाइटेड नेशंस को, अपनी आर्मीज भी भेजी है, अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजी है, अपने डॉक्टर्स भेजे हैं. जब भी ऐसा लगा है कि यूनाइटेड नेशंस ऐसी एक कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल पीस बनाने के लिए, सिक्योरिटी बनाने के लिए उन्हें ऐसी कोई जरूरत हुई है, तो इंडिया इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट. India has worked appreciably by sending military troops to countries like Gaza, Cyprus, Congo and Sri Lanka during their conflicts. जब इन कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तब भी इंडिया ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स को भेजकर एक एप्रिशिएबल वर्क वहां पे भी दिखाया है, और वो ट्रूप्स जाती है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू. इंडिया हैज हेल्प्ड एक्टिवली इन मेंटेनिंग पीस. इंडिया ने हमेशा कोशिश की है या हमेशा एक हेल्प की है कि हमेशा एक पीस बना रहे, जिसकी वजह से हम आज इंडिया और पाकिस्तान का जो भी इशू है, बट वी नेवर अटैक्ड ऑन देम, या हमने वॉर क्रिएट नहीं किया कभी. India has persistently emphasized on the need of disarmament to achieve world peace and security. India ने हमेशा एक यही जोर दिया है कि हमेशा डिसआर्मामेंट की जरूरत है वर्ल्ड को. अगर हम उससे वर्ल्ड पीस यानी इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी रखना चाहते हैं तो डिसआर्मामेंट इज मस्ट. यानी जो वेपन्स क्रिएशंस हो रहा है, ये जो न्यूक्लियर क्रिएशंस हो रहा है, बायोलॉजिकल क्रिएशंस जो वेपन्स के हो रहे हैं, उन सब पर रोक बहुत जरूरी है. In this issue, it has taken leadership in debates world around and in making useful suggestions. इस इश्यू में इंडिया ने हमेशा एक लीडरशिप की तरह आगे रहा है, डिबेट्स में काम किया है. डिबेट्स यानी ऐसे डिस्कशंस जहां होते हैं वहां इंडिया हमेशा सपोर्ट में रहा है कि ये सारी चीजें या वर्ल्ड पीस में वो मानता है.
राइट और वर्ल्ड अराउंड का हो या कोई भी सजेशंस ऐसा हो, उनका सजेशंस इंडिया का हमेशा यही होता है कि ऑलवेज फॉर मेकिंग पीस. India has expressed the desire of the entire humanity for peace by presenting a proposal for total nuclear disarmament in the United Nations General Assembly. इंडिया ने अपनी एक इच्छा तभी जाहिर कर दी जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडिया ने एक प्रपोजल रखा कि वो चाहती है कि टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, जिससे हम पूरे वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं. टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी न्यूक्लियर वेपन्स बनने ही नहीं चाहिए. To spend the money in the upliftment of poor people in other countries instead of using money in creation of nuclear weapons and military has always been a demand from India and United Nations. इंडिया की हमेशा ये डिमांड रही है यूनाइटेड नेशंस में कि जितना पैसा हम खर्च करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स या मिलिट्री को बनाने में, अगर उतना ही पैसा हम पुअर पीपल के पीछे खर्च करें, किसी भी कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च करें, तो डेवलपमेंट दिखेगा. World peace has permanently remained India's primary concern for its foreign policy. Foreign policy में अगर हम देखें तो इंडिया का पहला कंसर्न यही है कि वर्ल्ड पीस हमेशा बना रहना चाहिए. India has always remained active to achieve an atmosphere of cooperation, trust and understanding among nations. इंडिया का हमेशा एक नेचर रहा है और वो नेचर ये है कि वो हमेशा एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए रखना चाहता है जिसमें कॉपरेशन हो, जिसमें ट्रस्ट हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो दूसरे नेशंस के साथ. नाउ कम्स इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज. देख लेते हैं कि इंडिया के दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस रहे हैं. फर्स्ट कम्स इंडियाज रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. बोथ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. ये हमें पता है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, ये दोनों ही क्या है, यूएस, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, दोनों की सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी है. अपार्ट फ्रॉम हैविंग लॉट ऑफ सिमिलरिटीज, देयर हैज बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द रिलेशनशिप आल्सो. अगर हम ये बात करें कि डेमोक्रेटिक नेशंस होने की वजह से बहुत सारी सिमिलरिटीज है, तो इसके अलावा बहुत सारे ऊंच नीच भी है इन दोनों के रिलेशंस को लेकर. The United States did not like India's role of not joining any power bloc and accepting non-aligned policy after its independence. United States को हमेशा यानी अमेरिका को हमेशा ये बात खली है कि इंडिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया और नॉन अलाइन पॉलिसी क्यों ली, ये बात हमेशा उन्हें खटकी है. Further, they hoped that India would join them, but India joined the non-aligned movement for its economic growth. उन्हें ऐसा लगा था कि इंडिया हमेशा उसका साथ देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त, बट इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें अपनी यानी इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी थी. There is another reason that amicable relation between India and US could not grow. ऐसे और भी बहुत सारे amicable reason है या ऐसे रिलेशन है जिसकी वजह से इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो ग्रो नहीं हो रहा है या नहीं हो पाया किसी वजह से. दैट इज द यूएस पॉलिसी ऑफ फेवरिंग पाकिस्तान. और वो जो इशू था कि हमारे रिलेशंस और ग्रो नहीं हो पाए यूएस के साथ या नहीं हो पाए, उसका रीजन था पाकिस्तान को फेवर करना. यूएस की ऐसी एक पॉलिसी थी जो पाकिस्तान को फेवर कर रही थी. दे सपोर्टेड पाकिस्तान इन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर. पाकिस्तान हैड जॉइंड द यूएस लेड पावर एंड मिलिट्री ब्लॉक, व्हेयरएज इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. क्योंकि पाकिस्तान के हमारा जो जम्मू कश्मीर का केस चल रहा था उसमें यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था क्योंकि पाकिस्तान ने यूएस पावर को और मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन किया था. ओके और जिसकी वजह से, और उस वक्त इंडिया रहा था नॉन अलाइंड पॉलिसी में, तो इसकी वजह से यूएस का जो इंक्लिनेशन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहा. Treaties regarding nuclear weapons have become one of the most important points of disagreement between India and the United States. और इसके अलावा जितने भी ट्रीटीज आए इंडिया की तरफ से कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर आए, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट रहा कि इंडिया चाहती थी कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर. इससे भी यूएस काफी डिसएग्रीमेंट था यानी नाराज रहा इंडिया से, और इस वजह से हमारे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट रहे इंडिया के और यूनाइटेड स्टेट्स के. The United States has persisted that India should sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty and Comprehensive Test Ban Treaty. यूनाइटेड नेशंस का ये भी मानना था कि इंडिया को ये ट्रीटी को साइन करना था
करना चाहिए था, जो हमने ऑलरेडी आगे के पार्ट में डिस्कस किया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटीज. ओके, so we end our lecture here. Hope you understood it well. We'll meet in the next lecture with the another part of the same chapter. Up till bye bye. Take care, all of you.